Hello and welcome to the News Boulevard. I am Saidul Khan. This is Swati Prakash Jha. Well, before we move on with the news in details, let's take a look at the top stories of this hour. The headlines are brought to you by Airtel. Advani leaves his wrath behind, flies into Guwahati, all guns blazing. BJP leader woos people of Assam, says land deal with Bangladesh unconstitutional. Advani says all but forgets to mention about Assam's main issues. BJP leader in Tatagar says denounce China's claim over Arunachal. Arunachal's chief minister said to be decided in crucial CLP meeting tomorrow. 24 hours ban opposing UPDS peace parley cripples live in Karbi Anglong. Assam Bangladesh land officials meet to discuss new map. No succor in sight for the common man. Inflation touches double digit once again. The last dictator Gaddafi is dead, claims rebels. And in sports, India chasing 299 in the third one-day against England. Now the news in detail. Former Deputy Prime Minister L.K. Advani's Jan Chetna Rath today rolled into Assam, but the senior BJP leader arrived in Guwahati only by air. Firing all the cylinders, the senior BJP leader arrived at the Sonaram school playground at around 3:30 p.m. and straight away launched into a tirade against the UPA government at the centre. The leader, who had a meeting scheduled at 6 p.m. in Kolkata, seemed in no hurry as he once again raised serious concern over the UPA's policy, especially the recent land swap deal with Bangladesh. He picked on a subject which has been dominating the political spectrum in Assam and put the Tarun Gogoi government under some pressure. Laughing off the UPA government's external policy, Advani said that opposition was not told that the Congress government was planning to hand over India's land to Bangladesh, adding that such a decision cannot be taken without the approval of the parliament. Advani added that people of the state have every right to be angry and that the party will always be with them fighting for their rights. और फॉरेन पॉलिसी में तो टोटल फेलियर है। जिस समय जा रहे थे बांग्लादेश, तो उस समय हमने सोचा कि सारे के सारे चारों ओर जितने देश हैं, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बर्मा हो, वो हमारे साथ संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के तो कुछ संबंध अच्छे हैं। और जिस दिन जा रहे थे उससे 2 दिन पहले हमको बुलाया था, मुझे भी बुलाया था, सुषमा स्वराज को भी बुलाया था, अरुण जेटली को भी बुलाया था, लेकिन कोई जिक्र नहीं किया इस बात का कि हम जाकर के वहां पर अपनी जमीन उनको दे देंगे। अगर कंसल्टेशन करना था तो कंसल्टेशन करते कि हम ये करने वाले हैं। कैजुअली ऐसा जिक्र किया, कुछ एनक्लेव्स हैं, कुछ उनके यहां, कुछ हमारे यहां, और उन एनक्लेव्स में रहने वाले लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वहीं का वहीं रहे। एनक्लेव्स का नाम लिया, लेकिन अगर हमको पता होता कि वो तो उनको दे देने वाले हैं दान दक्षिणा में, तो हम उनसे कहते कि गलत बात है, ये नहीं हो सकता, भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। Even if it is adverse possession, it cannot be done without the approval of parliament. It cannot be done. मैं समझ सकता हूं अगर आसाम में इस बात का बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है, उचित है, और आपको इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। हम ही आपके साथ हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार की यात्रा जब 20 नवंबर को मेरी पूरी होगी और नया पार्लियामेंट का नया अधिवेशन शुरू होगा, तब हम निश्चित रूप से इन सब बातों के बारे में भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करके उनसे हिसाब मांगेंगे। जैसे सारे गीत में कहा है ना कि हिसाब मांगेंगे, बस इनफ इज इनफ, इसके आगे हिसाब मांगेंगे, तो हम हिसाब मांगेंगे सब बातों का, इंक्लूडिंग व्हाट दे हैव डन इन विथ रिगार्ड टू ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश। आप इतनी बड़ी संख्या में आए,
इस यात्रा का समर्थन करने के लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। BJP leader Lal Krishna Advani made a song and dance of his Jan Chetna Yatra as it reached Guwahati today. A song which exhorts the people to end the Congress misrule played in the background as the avid BJP supporters today sang along. Advani, however, preserved his choicest words for the Congress-led UPA as he said that the UPA government is not at all serious in bringing back illegally stashed money in Swiss banks, which can fuel the nation for at least another 50 years. Adding that the people of the country are fed up of the corrupt practices of the Congress government, Advani said that the UPA government in the centre is nothing but a corrupt regime run by people not at all concerned about the problems of the country. एक बिल पास किया है, कानून पास किया है, जिसका नाम है रेस्टिट्यूशन ऑफ इलिसिट एसेट्स एक्ट। रेस्टिट्यूशन ऑफ इलिसिट एसेट्स एक्ट 2011 इसी साल पास किया है कि अगर हमारे पास कोई ऐसे अमाउंट्स जमा हैं कि जो बेईमानी से कमाए गए हैं, गलत तरीके से कमाए गए हैं, तो हम जो देश हमको कहेगा हम उनको वापस देने को तैयार होंगे। अब ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिनका पूरा फायदा उठाना चाहिए था भारत सरकार को। 3 साल हो गए, मुझे संदेह होता है, कई बार संदेह होता है कि क्या यह सरकार जानबूझ करके इन सब बेईमानों को, जिन्होंने इस प्रकार से पैसा इकट्ठा किया है, काला धन विदेशों में रखा है, उनको अवसर देना चाहती है कि वो निकाल ले जाए, जैसे बाद में कुछ नहीं हो सके। मैं नहीं जानता हूं। इसीलिए इस अपने यात्रा के दौरान में मैंने 2 बार डिमांड किया है, आज फिर से डिमांड करता हूं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट इमीडिएटली कम आउट विद अ व्हाइट पेपर टेलिंग अस व्हाट एक्शन हैव दे टेकन टू सी that this black money in foreign banks is brought back home. 2-3 बार संसद में घोषणा तो की है कि हम कदम उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा है तो उनको कहते हैं कि हाँ, हम कदम उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उनसे यह भी पूछा कि आपको कुछ नाम मिले हैं, ऐसा पता लगा है? हाँ, उन्होंने कहा हम नाम मिले हैं, लेकिन हम नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि एक लिस्ट कोई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी दी है। मैंने सुना है, ये सारी बातें सुनी हुई है, सुना है कि उन्होंने एक लिस्ट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है कि आप क्वाइटली इन लोगों से पता लगाओ कि उनकी संपत्ति विदेशों में है क्या। डू इट क्वाइटली। क्यों क्वाइटली? दुनिया के लोगों को पता लगना चाहिए, भारत को पता लगना चाहिए, और खास करके इसलिए क्योंकि इन दिनों में जब मैं ये 2 विषय लेकर के यात्रा पर चला हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ और काले धन को वापस लाने के लिए, तो मैंने अनुमान लगाए हैं। In his fierce speech, the BJP leader also came down heavily on Prime Minister Manmohan Singh for turning mute spectator to all the wrongdoings that changed the entire outlook of the country. The leader added that in a democracy, the buck should stop in 7 race course. However, with the NDA government, the buck always stops at 10 Janpad. The leader added that he would continue speaking harshly about the NDA government as they only understand when the right things are said in a harsh manner. पर्याप्त जल न मिलता हो, यह स्थिति है। एक बार अगर सरकार हिम्मत कर ले, निर्णय कर ले, सब हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से यह सरकार ऐसी है किम कर्तव्य विमूढ़। और मैंने अगर कह दिया कि प्रधानमंत्री कमजोर है तो कहते हैं कि ही इज यूजिंग हार्श वर्ड्स। कमजोर तो है ही। जो व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता जब तक के 10 जनपद क्लियरेंस न दे, उसको मैं क्या कहूं? मैंने कोई तीखा शब्द का प्रयोग नहीं किया। आज मैंने अखबार में देखा, अभी मुझे उतरते ही एयरपोर्ट पर कोई पत्रकार पूछ रहा था, कोई टेलीविजन चैनल वाला पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि यू आर यूजिंग हार्श वर्ड्स। आई डू नॉट नो व्हाट इज हार्श अबाउट इट। दुनिया भर में
देश का प्रधानमंत्री, ही इज द लास्ट वर्ड। बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के डेस्क पर लिखा रहता है, द बक स्टॉप्स हियर, द बक डजंट गो टू 10 जनपथ, इट स्टॉप्स एट 7 रेसकोर्स रोड, इट हैज टू स्टॉप देयर, इट डजंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि जिनके साथ लोकसभा में 8-10 MP भी नहीं थे, तो भी जब तक प्रधानमंत्री थे